Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Fill in the blanks. 1. A panchayat is headed by dash. Answer is Sarpanch. A panchayat is headed by सरपंच. पंचायत का लीडर या मुखिया कौन होता है? तो सरपंच. 2. Dash seats are reserved in the panchayats for women. Answer is 1/3. 1/3 seat are reserved in the panchayat for women. पंचायत में स्त्रियों के लिए 1/3 यानी कि तीसरा भाग सीट रिजर्व्ड है. 3. The three-tier system was added to the constitution by the dash amendment. Answer is 73rd amendment. Means हमारे संविधान में कौन से अमेंडमेंट में 3 लेवल सिस्टम लागू हुआ? तो आंसर है 73rd. अमेंडमेंट से आप क्या समझते हैं? अमेंडमेंट मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसमें ज़रूरत पड़ती है तो कोई सुधार करते हैं और नया रूल बनाते हैं, तो उसको कहते हैं अमेंडमेंट. नंबर 4. The dash take care of the administration in the block. The answer is block samiti. The block samiti take care of the administration in a block. Number 5. Dash is the body which look after the district administration. तो जो थर्ड बॉडी है डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसको कौन देखता है? आंसर है जिला परिषद. जिला परिषद is the body which look after district administration. Number 6. Many villages together make up a dash. Answer is block और एक group. Many villages together make up a block. तो बहुत सारे विलेज मिलके क्या बनता है? तो आंसर है ब्लॉक. नाउ नेक्स्ट. Fill in the blanks with the correct answers. 1. The Panchayat Raj is a dash tier system or level system. Answer A2, B3, C4, D5. Answer is B3. The Panchayati Raj is a 3-level system. Number 2. The main function of the Gram Panchayat is to elect A. Jilla Parishad, B. Panchayat Samiti, C. Gram Panchayat, D. Block Development Officer. Answer is Gram Panchayat. The main function of the Gram Sabha is to elect Gram Panchayat. Number 3. The smallest unit of administration is dash. A. District, B. State, C. Village, D. Streets. Answer is village. The smallest unit of administration is village. Number 4. The village court is called dash. Answer is न्याय पंचायत. ए. ग्राम पंचायत, बी. तहसील कोर्ट, सी. न्याय पंचायत, डी. हाई कोर्ट. आंसर इज न्याय पंचायत. द विलेज कोर्ट इज कॉल्ड न्याय पंचायत. जो गांव में कोर्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं? न्याय पंचायत. राइट टी
for true and F for false. Number 1. The panchayat gets money from collecting tax. Right. पंचायत को जो टैक्स कलेक्ट करते हैं उसमें से पैसे मिलते हैं या टैक्स कलेक्ट करके पंचायत को धनराशि मिलती है. यस, राइट. नंबर 2. द वुमेन हैव गॉट नो रोल टू प्ले इन द पंचायत्स. स्त्रियों को पंचायती राज में कोई भी स्थान नहीं है. आंसर इज रॉन्ग. द पंचायत कनेक्ट approximately 2 lakh panchayats in the country. Right. मतलब कि कंट्री में 2 लाख से भी ज़्यादा पंचायत कनेक्ट है. यस. नंबर 4. द ब्लॉक समिति इज हेडेड बाय ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. आंसर इज रॉन्ग. ब्लॉक समिति यानी कि जो दूसरे लेवल की समिति है उसके हेड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है. नो, रॉन्ग है. नंबर 5. द सेंट्रल फाइनेंस कमीशन अप्रूव्ड ग्रांट फॉर द ग्राम पंचायत. आंसर इज राइट. यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, उसमें फाइनेंस कमीशन यानी कि कमेटी होती है. वे लोग पंचायत को ग्रांट यानी कि फंड देते हैं. यस, राइट. आंसर दिस क्वेश्चंस इन ब्रीफ. नंबर 1. व्हाट इज द ग्राम सभा? ग्राम सभा क्या होती है? आंसर 1. इन ए विलेज ऑल दोज हु आर 18 years and above are the member of the Gram Sabha and a right to vote as a member of a Gram Sabha. जिस विलेज में, जिस गांव में 18 साल के या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति होते हैं वो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं और उन्हें वोट यानी कि मत देने का अधिकार होता है. Question 2. Why was the Panchayati Raj system included in the Constitution? Means Constitution यानी हमारा संविधान, रूल्स एंड रेगुलेशन, उसमें क्यों इसे मिलाया गया? आंसर 2. As it was introduced by 73rd Amendment of the Constitution and formally recognized the 3 level of government at the state level, thereby creating the legal condition for local self-rule और पंचायती राज. इसमें ये कहना चाहते हैं कि जब 73rd अमेंडमेंट बना, अमेंडमेंट आपको पहले ही बताया है कि कोई रूल्स में जब चेंज लाते हैं तो उसको हम अमेंडमेंट कहते हैं. तो 73rd अमेंडमेंट बना तो इसको संविधान में यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लेवल गवर्नमेंट के लिए रखा गया और बाद में उसको टर्म्स एंड कंडीशन के साथ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या पंचायती राज के नाम से जाना गया. क्वेश्चन नंबर 3. Why can the central government not take care of the whole country on its own? यानी कि केंद्रीय सरकार जो सबसे बड़ी सरकार है देश की, वो पूरी कंट्री का क्यों एक साथ काम नहीं कर सकती है? पूरी कंट्री का एक साथ ध्यान क्यों नहीं रख सकती है? आंसर. As we know that our country is very vast, so it is not possible to look after whole country. Point number 2. It will take too much time as well as it may be very much expensive.
पहले पॉइंट में ये कहा है कि जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा कंट्री बहुत बड़ा है, तो इस पूरी कंट्री को देखना केंद्रीय सरकार के लिए बहुत मुश्किल है। दूसरे पॉइंट में ये कहा है कि अगर केंद्रीय सरकार के द्वारा काम भी किया जाए तो उसमें टाइम भी, समय भी बहुत लगेगा और खर्च भी बहुत अधिक आएगा। साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर यही काम हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि गांव के लोकल पीपल को ही देते हैं तो उन्हें डेमोक्रेसी सिस्टम की ट्रेनिंग भी मिलेगी और वे अपने गांव का काम अच्छे से भी कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन वी से दैट द पंचायती राज सिस्टम गिव्स द पीपल ट्रेनिंग इन डेमोक्रेसी? मतलब कि पंचायती राज के द्वारा पीपल यानी लोगों को डेमोक्रेसी की ट्रेनिंग मिलती है। आंसर 4, एज पंचायती राज सिस्टम is a miniature structure of democracy. By taking part in the Panchayati Raj, rural people are made aware of their duties, responsibilities as well as rights. So, in this way, rural people indirectly support democracy and get training by taking active part in पंचायती राज सिस्टम। अब इस आंसर में ये कहते हैं कि पंचायती राज है वो मिनिएचर यानी कि छोटा ही रूप है किसका? डेमोक्रेसी का। तो इसमें पार्ट लेते हैं जब गांव के लोग पंचायती राज में, तो वे अपनी ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जवाबदारी, ड्यूटी यानी फ़र्ज़, एज वेल एज राइट्स यानी कि हक, तो अब उनको अपनी ड्यूटीज़ का, अपने हक का, अपनी जवाबदारी का जो है समझ आती है और इस तरह से गांव के लोग इनडायरेक्टली है वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं और डेमोक्रेसी जो हमारे कंट्री में चलती है उसमें भी वो इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरह से वो डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करते तो हैं ही, मगर साथ में वो ग्राम पंचायत में एक्टिव पार्ट लेकर, उसमें भाग लेकर वो पंचायती राज सिस्टम में भाग लेकर जो है डेमोक्रेसी के बारे में सब कुछ जानते हैं, सीख जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पंचायत्स रिक्वायर मनी टू कैरी आउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हाउ डू दे गेट मनी? इसमें ये पूछा है कि पंचायती राज जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेवारी गांव के लिए निभाता है, उनके लिए जो काम करता है छोटे बड़े, उनके लिए वह धनराशि कहाँ से प्राप्त करते हैं? आंसर 5, सोर्सेस ऑफ फंड ऑफ पंचायत्स आर 1, टैक्सेस कलेक्टेड बाय पंचायत्स, 2, फंड्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, 3, फंड्स रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। पहला जो आय का साधन है वह है टैक्सेस, यानी ग्राम पंचायत है वो गांव के लोगों के ऊपर जो टैक्स लगाते हैं उनमें से वो जो धनराशि प्राप्त करते हैं वो धनराशि वो यूज़ करते हैं। सेकेंड, पंचायत को स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी फंड मिलता है यानी कि पैसे मिलते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए। थर्ड, फंड रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्रीय सरकार भी उनको फंड देती है, कुछ अमाउंट देती है, खास करके बड़े कोई प्रोजेक्ट हो उनके लिए, बजट के लिए आदि।
क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द न्याय पंचायत? न्याय पंचायत का क्या काम होता है? आंसर 6, द रोल ऑफ न्याय पंचायत इज टू सॉल्व सिंपल डिस्प्यूट्स अमंग पीपल. नंबर 2, केसेस ऑफ पेटी थेफ्ट, minor trespass and other such cases. Number 3, Nyay Panchayat have no power to punish people, but they levy fines on the people and refer cases to the district court. इसमें न्याय पंचायत का क्या रोल है उसके बारे में बताया है, और पहला है कि वो गांव के छोटे मोटे झगड़ों को निपटाते हैं. गांव में कोई चोरी हो या कोई गुनाह हो, छोटे मोटे गुनाह, कोई किसी के ऊपर अत्याचार कर रहा हो, तो ऐसे माइनर ट्रेसपास को भी वो सुलझाते हैं. तीसरा, न्याय पंचायत के पास ऐसा कोई पावर नहीं होता है कि वो जो गुनाह करने वाले होते हो उसको वो सज़ा दे सके या उनको जेल में डाल सके. मात्र केवल उनके ऊपर कोई फाइन लगाकर, दंड लगाकर उनसे वो दंड वसूल कर सकते हैं. और कोई ऐसा केस हो जो उनके हाथ में नहीं होता है, वो सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आगे रिफ़र यानी कि उनको आगे भेजा जाता है. राइट शॉर्ट नोट ऑन 3 लेवल ऑफ पंचायती राज. Gram Panchayats are the basic unit of local administration. The system has 3 levels: Gram Panchayat at village level. Sarpanch is the head of Gram Panchayat. Second level is block level, and block is headed by block samiti. The head of the block samiti is block development officer. It is also known as BDO. And third level is district level, and district is administered by the Jilla Parishad, and head of the district is district collector. अब इसमें आपको पंचायती राज है, और पंचायती राज है वो 3 लेवल की होती है, उसके बारे में आपको बताना है. तो इसमें कहा है पंचायती राज है वो बेसिक यूनिट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है. इस राज्य में, पंचायती राज में 3 लेवल होते हैं. पहला है ग्राम पंचायत, वो गांव में होता है और उसके हेड होते हैं सरपंच. सेकंड लेवल होता है, उसको हम लोग कहते हैं ब्लॉक लेवल, और उसको कौन चलाता है? तो ब्लॉक समिति है, वो उसको ब्लॉक लेवल को चलाती है. और उनका जो ऑफिसर होता है उसको कहते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, BDO. और उसके बाद जो तीसरा लेवल होता है उसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल. एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल है, उनको कौन चलाता है? जिला परिषद. और डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो हाईएस्ट ऑफिसर होता है उसको कहते हैं हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. और इस तरह से ये जो पंचायती राज सिस्टम है वो 3 लेवल होते हैं, वो आपने इसमें